Now the car next to me is the Maruti Suzuki e-Vitara. It's a very important car for India's EV dream. एंड ये गाड़ी हम पहले भी देख चुके हैं प्रोटोटाइप फॉर्म में, इसका एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर्म भी देख चुके हैं, बट आज हम इस गाड़ी को चलाने वाले हैं. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू ड्राइव इट, रिव्यू दिस कार, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ द कार इज टू ड्राइव, कैसी है चलाने में, कंफर्टेबल है या नहीं, चलाने में मज़ा आएगा, फैमिली खुश रहेगी नहीं, ऑल ऑफ दोज क्वेश्चन. बट दिस वन क्वेश्चन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल ऑफ देम. It's an EV. इसकी रेंज कितनी है? Because ultimately that's going to decide if this car works in the real world or not. So today we are not just going to review this car, but we are also trying to conduct a range test. Now अब हमारे पास गाड़ी जो है करीब 6 घंटे के लिए है. Car is at 98% charge. It's showing about 460 kilometers of range. What we are going to try and do is in those 6 hours we are going to try and deplete as much range as possible. अब वो हम कैसे करेंगे? वेल हम यहाँ से निकलते ही दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाले हैं. वहाँ पे हम काफ़ी टाइम गाड़ी को चलाएंगे, फिर हम वहाँ से उतरेंगे, सिटी कंडीशन में भी चलाएंगे एंड अल्टीमेटली करीब 6 घंटे बाद वापस यहीं आ जाएंगे. उतने में होपफुली हम इसकी बैटरी को एटलीस्ट अंडर 10% तो ले आएंगे, या क्लोज टू 1% भी अगर ला पाए तो दैट विल बी रियली गुड. एंड इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि गाड़ी की एक्चुअली रियल वर्ल्ड में रेंज कितनी है एंड ये चलाने में कैसी है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं. हाय, माय नेम इज ध्रुव पालीवाल, यू आर वाचिंग द टाइम्स ड्राइव शो. लेट्स गेट रोलिंग. Well, I'm on my way as you can see, and just a quick correction there. So when we started off, in the time I was talking to you, the car recalculated its range and at 98% it was showing 473 kilometers. So that's where we started. We've done about 5 kilometers till now. And let's get going. First of all, we're going to do our highway stretch over here, and वहाँ पे हमारे को actually में सबसे बड़ा range में drop देखने को मिलेगा. And चलिए ड्राइव करते हैं. Let's figure out what the e-Vitara is like. I'm going to give you a quick update over here now. अब actually हम दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे चढ़ तो गए हैं, but as you can see around me, यहाँ पे there is a lot of fog. We are in the northern region of India, near Delhi, so this is something we have to deal with. And इसकी वजह से हम actually में बहुत ज़्यादा हाईवे स्पीड पे चला नहीं पा रहे हैं. The max I've been able to go is 60, 70, 80 is the last. उससे ज़्यादा की विजिबिलिटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही है. बट इन दैट सेंस अभी तक हमने 35 किलोमीटर्स कर लिए हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी, एंड द रेंज इज शोइंग एट 424 किलोमीटर्स एंड देयर इज 88% charge left in the battery. I have about 15 kilometers left to get to my destination where I'll be stopping on the highway. I'll talk to you more about the car over there. So chaliye, let's quickly try and get there. Well, we've come to our first stop, and if you're talking about the range test over here, we've covered 53 kilometers. The amount of range left that is indicated on the odo is about 372 kilometers, and in terms of percentage we have 81% of charge left. Now let's start with the design of the Maruti Suzuki e-Vitara. जहाँ मारुति की बात करते हैं और डिज़ाइन की बात करते हैं, they play it safe, but with the e-Vitara they've tried something a little bit different. First look में मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये गाड़ी काफ़ी एंगुलर है. अब इससे क्या कहूँगा, इन्होंने लाइंस का जो है बहुत यूज़ किया है. आप इतने से सेक्शन में देखिए 3 डिफरेंट शार्प लाइंस आपको यहाँ देखने को मिलेगी. मैं यहाँ फ्रंट की तरफ भी अगर आता हूँ तो यहाँ पे फ्रंट एरिया में भी this front entire area has this nice line flowing through it. I think this also helps give it that look of being a little bit of a macho SUV. But जहाँ road presence की बात अगर हम करेंगे तो वहाँ पे मैं ये कहूँगा कि this car is a mixed bag. Definitely it's a new design. This is going to stand out on the road. But अगर हम बात करें कि आप एक डिपर मारो एंड आपको रियरव्यू मिरर में देख के कोई जगह दे दे, दैट विल बी अ लिटिल बिट क्वेश्चनेबल आई थिंक इन दिस कार. विद दैट चलते हैं साइड में, देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें हैं देखने लायक. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी पहली नज़र पड़ती है यहाँ पे गाड़ी के व्हील्स पे. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई लुक एट एनी कार ऑन द साइड. अब यहाँ पे मैं साइज़ की बात करूँ, सो दिस इज़ अ 225 सेक्शन टायर. इसका 55 प्रोफाइल और 18 इंच का व्हील है. MRF Wanderer Eco Tread टायर्स हैं. ऑब्वियसली रोलिंग रेजिस्टेंस कम करने के लिए दीज आर EV स्पेसिफिक टायर्स. बात करूँ इस 18 इंच के व्हील की, सो दिस इज़ अ न्यू डिज़ाइन फॉर मारुति. एंड व्हाई इज़ दैट? वेल, दिस इज़ एन एरो व्हील. काफ़ी चंकी व्हील्स हैं, देखने में अच्छे लगते हैं. गिव्स द साइड ऑफ द कार अ बिट ऑफ प्रेजेंस ऑल्सो. साथ ही साथ यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलेगा. पोर्ट की बात करें, रेगुलर CCS2 पोर्ट है, ये वाला नॉर्मल पोर्ट है जब आप स्लो चार्ज कर रहे हैं.
नीचे वाले कवर को हटाइए, कन्वर्ट्स इनटू अ CCS2 पोर्ट जो किसी भी DC फास्ट चार्जर के साथ इसकी बैटरी को क्विकली चार्ज कर पाएगा। अब साइड में यहाँ पे हमारे को ये ब्लैक क्लैडिंग भी देखने को मिलती है विच इज सो टिपिकल ऑन SUVs नाउअडेज। मैट ब्लैक फिनिश है। पीछे की तरफ आते हैं, काफी और चौड़ी हो जाती है, गिव्स इट अ रगड लुक एंड जो रूफ लाइन है वो भी पीछे की तरफ स्लाइटली स्लोपिंग है। विद दैट लेट्स कम टू द रियर एंड सी यहाँ पे ई विटारा देखने में कैसी है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो थिंग्स आर एक्चुअली सिंपल। जो रूफ का स्लोपिंग लुक है वो काफी प्रोनाउंस्ड है। यहाँ पे जो रियर विंडशील्ड है काफी रेक्ड है। यहाँ पे लाइट्स की भी यहाँ पे बात करते हैं तो जैसे हमने फ्रंट में देखा था ट्रिपल LED एलिमेंट्स थे, यहाँ भी वो देखने को मिलते हैं। ये 3 LED एलिमेंट्स जो ब्रेक लाइट की तरह जलते हैं। बट लाइक मोस्ट कार्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ कनेक्टेड लाइट ओवर हियर। यहाँ पर एक हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ बम्पर की बात करें तो ये पार्ट ऑफ द बम्पर तो लिटरली ऑलमोस्ट पूरा मैट ब्लैक फिनिश में है। अगेन वन ऑफ दोस माचो रगड लुक्स देने की कोशिश करी गई है गाड़ी को। कितना सफल हुई है मारुति इस गाड़ी को एक अच्छी रोड प्रेजेंस देने में। I would definitely love to know what you think about that। गाड़ी आप तीनों ओर से देख चुके हैं, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। I'm sitting inside the e-Vitara over here in the first row and I have to say this, I am pleasantly surprised। मारुति के साथ मैंने इतना अच्छा कैबिन तो कभी पहले नहीं देखा। स्टार्ट करता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है वो है ये डैशबोर्ड का लेआउट। अब यहाँ पे एक ट्रिपल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ट्रिपल लेयर डैशबोर्ड देखने को मिलता है। ऊपर ब्लैक है, नीचे ब्लैक है, बीच में ये ब्राउन है। हार्ड है ये वाले प्लास्टिक्स, ये वाले कम, ये वाले ज़्यादा। दिस इज़ रियली सॉफ्ट टच। मारुति ने यहाँ पे जुडिशियसली मटीरियल्स को यूज़ किया है, सो यू गेट दैट प्रीमियम फीलिंग विदाउट आई थिंक द कॉस्ट बीइंग टू हाई, क्योंकि कॉस्ट तो अभी हमारे को गाड़ी की पता नहीं है। बट दिस बीइंग अ मारुति वी एक्सपेक्टेड टू बी प्राइस्ड अग्रेसिवली। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बात करता हूँ सीट्स की। जो कुशनिंग है ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, चाहे सिटी में चलाओ चाहे हाईवे में चलाओ, दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क रियली रियली वेल। साथ में वेंटिलेटेड भी है, सो दैट्स अ नाइस टच ओवर हियर। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके साथ इन AC वेंट्स की। ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, वर्टिकली स्टैक्ड है। पहली बार इस टाइप के AC वेंट्स हमारे को एक मारुति में देखने को मिल रहे हैं। सो आई थिंक दैट ऑल्सो गिव्स इट दैट प्रीमियम टच, स्पेशली ये श्राउड जो इनके अराउंड है। बट दैट्स वेयर द गुड बिट्स एंड, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट दिस स्क्रीन। नाउ इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स लुक्स रियली नाइस। यूज़ करूँ अगर इंटरफेस की बात करूँ, यहाँ पे स्क्रीन का टच इंटरफेस ठीक है, रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा बहुत हल्का सा लैग फील हो रहा है। बट आई थिंक इट्स अ प्रोटोटाइप यूनिट दीज कार्स आर, सो ये सब चीज़ें तो हो सकता है सॉर्ट भी हो जाएं। बट द वन बिग प्रॉब्लम एंड मैनी पीपल हैव पॉइंटेड दिस आउट, फ्लोटिंग डिस्प्ले तो आपने दे दिया। ये स्क्रीन है ये इतनी बड़ी है, बट यहाँ पे जो स्क्रीन है ये इतनी सी है। ये सारा एरिया जो स्क्रीन का है वो फ्री है, यहाँ बीच में भी काफ़ी जगह है। सो आई थिंक इन टर्म ट्राइंग टू गिव दैट बिग स्क्रीन अपीयरेंस, they've ended up really wasting a lot of space over here, which when you live with a car for a long time will not really feel so good। साथ ही साथ अब एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ पे आपको किस टाइप के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक वायरलेस चार्जिंग पैड है, ये आपको 2 कप होल्डर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब सेंटर कंसोल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये ड्राइव मोड का बटन है, ये आपका रीजन का बटन है, एंड ये अगर आप गाड़ी स्नो में चला रहे हैं तो स्नो मोड का बटन है। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड दिस इज़ द ऑटो होल्ड फीचर। This is the transmission shifter. Obviously, this is all controlled digitally. It's drive-by-wire. उसके बाद यहाँ पे बात करता हूँ टॉगल स्विचेस की। तो आपको यहाँ पे AC के लिए फ्रंट और रियर डिफॉगर के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं। फैन स्पीड है, AC है, रिसर्कुलेशन है, हॉट एंड कोल्ड एयर है, एंड साथ ही साथ म्यूजिक सिस्टम की वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए एंड ऑन ऑफ करने के लिए भी यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। दिस आई थिंक इज़ अ रियली गुड टच, बिकॉज बाकी सारे फीचर्स स्क्रीन के अंदर ही घुसे हुए हैं। यहीं पे मैं बात करना चाह रहा था, जो वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर है उसका बटन स्क्रीन के अंदर दिया गया हुआ है। अब उसी के साथ मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इसके स्टीयरिंग व्हील पे। एक स्क्वायरिश सा स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है, स्क्वार्कल जिसे कह सकते हैं। टेक अ लुक एट द बटन्स ओवर हियर। लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो है आपको म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, वॉइस ऑपरेशन के लिए, और स्क्रीन के ऊपर आपको इन्फो और ट्रिप जैसी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। राइट साइड में आपके सारे बटन्स जो दिए गए हैं वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन असिस्ट इन सारे फीचर्स को लेकर के हैं। ऊपर सनरूफ आपको देखने को मिल रही है, बट दिस इज नॉट अ सनरूफ दैट ओपन्स, इट्स जस्ट फिक्स्ड ग्लास रूफ एंड आप इसका जो ये शेड है इसको भी मैन्युअली ऑपरेट करते हैं। विद दैट लेट्स मूव टू द सेकंड रो एंड सी व्हाट दैट फील्स लाइक। तो अब मैं आ गया हूँ ई-विटारा की सेकंड रो में। लेट्स स्टार्ट विद हाउ आई फील लाइक व्हेन आई एम सिटिंग।
अगेन सीट्स अच्छी हैं जैसी आगे थी, बट यहाँ पर जो ग्राउंड है वो काफ़ी ऊपर फील हो रहा है, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द बैटरी पैक। अब नी रूम की बात करूँ, बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाली सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है। मेरी हाइट फॉर रेफरेंस इज़ अबाउट 5'8". मेरे फीट आराम से टक इन हो जा रहे हैं सीट के नीचे। बट व्हाट आई एम फेसिंग अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम हियर इज़ विद द अंडर थाई सपोर्ट। साइड में बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सा पॉकेट मिलता है, नीचे एक बॉटल होल्डर टाइप जगह है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। यहाँ छोटे से एसी इवेंट दिए गए हैं, ये कितना काम इफेक्टिव होने वाले हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट इनको ऑन ऑफ करने का भी डायल यहाँ पे नीचे दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे रियर में 2 चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक USB टाइप A है, एक USB टाइप C है, और उसके अलावा यहाँ पे एक फ़ोन रखने के लिए भी जगह दी गई है। सेंटर में जो आर्मरेस्ट है इज़ अ प्रॉपर चंकी आर्मरेस्ट ओवर हियर। बेसिकली ये जो सीट है ये 60-40 नहीं, ये 40-20-40 स्प्लिट है। एंड जो ये सेंटर सीट है, जब ये नीचे आ जाती है तो आपको एक्चुअली बूट का भी एक्सेस मिलता है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और पार्टीशन होना चाहिए था, जब आपको बूट की एक्सेस चाहिए तभी मिलनी चाहिए थी। बूट खुला हुआ है पूरे टाइम पे, एंड साथ ही साथ उसके जो यहाँ पे ये पॉइंट्स है जिस पे जाके ये सीट लॉक होती है वो भी एक्सपोज्ड है। थोड़ा सा ये प्रीमियम फील बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच शुड हैव बीन कवर्ड अप। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। गुड थिंग इज़ देखने में ये टेढ़ा लग रहा है, बट अंदर से अगर आप इसमें रखेंगे, दे हैव लेवल्ड इट आउट, सो वट एवर कप यू कीप हियर विल बी स्ट्रेट। ऐसा नहीं है कि आपकी ड्रिंक, आपका बेवरेज, कॉफ़ी जो भी हो वो यहाँ पे गिरती पड़ती रहेगी। अगर इसको वापस ऊपर कर दें, यहाँ पे मैं 3 बिठाने की बात करूँ, आ तो जाएंगे, बट अगेन लंबे टाइम के लिए they will not be very comfortable. Headroom की बात करते हैं, taller passengers will probably find there to be an issue with their head kind of bumping into the roof over here. अब पैसेंजर कंफर्ट के लिए यहाँ पे मारुति ने एक और फीचर दिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्लाइड और रिक्लाइन। ये जो सीट्स हैं these can slide, तो ये इतनी आगे तक जा सकती है, इतना स्लाइड हो सकती है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक लीवर पुल करके these can recline as well। तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, या अपनी पूरी पीछे वाली पोजीशन पे सेट कर सकता हूँ। सो डेफिनेटली दैट लेवल ऑफ एडजस्टेबिलिटी इज देयर, एंड विद दैट लेट्स हैव अ लुक एट द बूट। देखते हैं वहाँ पे कितनी जगह है। अब हम डिग्गी पे आ तो गए हैं, बट ये खुलती कैसे है? वेल आप बटन ढूंढ रहे होंगे, लेट मी टेल यू वेयर इट इज। इट्स राइट हियर, एंड ये पूरा सेक्शन एक साथ खुल जाता है। अब बूट की बात करें, देखने में तो ज़्यादा नहीं लग रहा है। अकॉर्डिंग टू नंबर्स दिस इज़ 238 लीटर्स ऑफ स्पेस। थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी अगर अपनी सीट आप आगे स्लाइड या रिक्लाइन कर लेंगे, बट ओवरऑल यहाँ पे एक बड़ा सूटकेस या 2-3 छोटे सूटकेस बैग्स ही आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा सामान तो फिट नहीं आएगा, बट अ लॉट ऑफ द स्पेस इज ऑल्सो टेकिंग अप बाय अनदर थिंग विच इज़ ओवर हियर। सो ये फोल्ड होके जो ऊपर का कवर है पीछे चले जाता है। यहाँ पे आपको गाड़ी का पोर्टेबल चार्जर देखने को मिलता है, एंड इसके नीचे यहाँ पे टायर भी दिया हुआ है, स्पेयर टायर। And this is not a space saver. This is a proper 225 section 55 profile 18-inch tire. Basically एक proper full size tire आपको दिया है। अब उसी के साथ we've had a good look at the car. It's time to jump back into the driver's seat and continue our range test, क्योंकि hopefully we want to get this car all the way down to 2-3% so that we know really what the e-Vitara is like to drive and how long is the range, how much can you drive it. With that, I'm getting back into the car, into the driver's seat, and I'm starting the next leg of my range test. खड़े होके तो काफी बातें हो गई, and now it's time to get back on the road. मैं हाईवे पे वापस चढ़ चुका हूँ for my second highway stint. Let me just quickly give you a range update. I'm at 75%. It's showing me 356 kilometers of range, and I have covered 69.8, so let's say 70 kilometers. Time to put some miles in, and the thing is, I'm also going to talk to you about what the experience is like to drive this car. But till now, I've only been using the normal drive mode, and that is because the weather was not nice. It was foggy in the morning. The day has now cleared up. So what I'm going to do is switch this into sport. I mean, what's a range test without using sport mode, right? Well, let's see how the range fares. Well, I've just paid my toll, gotten off the highway. So let me give you a quick update. I'm at 299 kilometers of range left, 64%, and I've covered 89 kilometers. And with that, now I think it's a good time to talk about the driving impressions of this car.
अब जब मुझे पता चला था कि मैं ई विटारा की ड्राइव पे आने वाला हूँ, तो वन थिंग दैट डिड नॉट इम्प्रेस मी अबाउट दिस कार वाज द स्पेक शीट. Now this motor makes about 192 Newton meters of torque and 174 PS of power, and it didn't really leave me impressed. After all, it's an electric SUV. This thing is going to be heavy. So 192 Newton meters of torque, would it be enough? And I think this question was answered in the morning itself when I was driving during the fog. And वहाँ पे क्या हो रहा था कि मेरे को तो याद भी नहीं था कि मैंने गाड़ी स्पोर्ट मोड में डाली है. गाड़ी नॉर्मल में चल रही थी. And to be honest, getting out of the city, getting onto the highway and having to make overtakes between cars and buses, it felt enough. I'm not gonna go and say here कि गाड़ी बहुत ही स्पोर्टी फील हो रही थी और दबाती सर पीछे जा रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं था. इनफैक्ट स्पोर्ट मोड में भी ऐसा नहीं होता है. बट इट नेवर फेल्ट, कमी नहीं महसूस हुई यहाँ पे हमारे को किसी भी तरीके के पावर की देखने के लिए. सो while spec sheet might say one thing, I think in the real world the driving experience does say that the motor packs in enough juice to be able to supplement your driving experience properly, and you will not feel wanting for more. So overall I think electric motor की बात करूँ, throttle response की यहाँ पे मैं बात करूँ, तो ये सारी चीज़ों के मामले में मारुति सुजुकी ने यहाँ पे खास ध्यान दिया है. They've tuned it well, and I think that is a big reason why I feel that this is such an effortless car to drive. And with that, one more quick update on the range test. We are at 93 kilometers. We've got 63% of battery left, and the indicated range that's showing is 295 kilometers. Now I want to talk about the suspension over here. Maruti cars generally have a sorted suspension. बहुत ज़्यादा sporty नहीं होता, बहुत ज़्यादा comfy नहीं होता. It's a solid middle ground. And with this car too, the story remains the same. In fact, it does feel a little bit premium in the way it damps out the bumps. There were some really bad bumps on the highways we were driving on in the morning, and while you could hear the suspension work, it felt a little busy. The car, the chassis, it stayed flat. Now it's been a long day of driving, a long day of shooting, and while I wanted to bring the battery down to 0%, sadly that's not been the case. We ran out of time. The figures are, I've driven 152.9 kilometers, I've consumed 51% of battery, that means 49% is left, and on the instrument cluster it shows me that I have about 227 to 229 kilometers of range left. अगर रफली अब यहाँ पे बात करें, इसका मतलब ये निकल के आता है कि 50% बैटरी मैंने यूज़ करी है 150 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाने के लिए. अगर 100% यूज़ करता तो मतलब 300 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज निकल के आती. बट here is something you need to consider over here. We've been driving this car under shoot conditions, जहाँ पे गाड़ी एक नॉर्मल तरीके से नहीं चलाई जाती है. इसको थोड़ा और अग्रेसिवली चलाया जाता है और उसकी वजह से रेंज पे ऑब्वियसली और ज़्यादा फ़र्क भी पड़ता है. अगर एक नॉर्मल इंसान इस गाड़ी को चलाएगा डेफिनेटली एक नॉर्मल तरीके से, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 400 किलोमीटर्स तो आपको इस गाड़ी से रेंज मिल ही जाएगी. That is why I'll definitely say this. While we do not know what the maximum range will be of the e Vitara in the real world, I can definitely say this, that if you drive it quickly, very very quickly, fast, it will still give you about 280 to 300 kilometers of range on one full charge. And honestly, with that type of driving, it is a big plus. ये तो रही रेंज टेस्ट की बात. अब इस रिव्यू को भी सम अप कर देते हैं. हमें इस गाड़ी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अभी नहीं पता हैं, जैसे कि इसका प्राइस. बट मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि डिज़ाइन वाइज इट इज़ डेफिनेटली अ स्टेप अप फ्रॉम अदर मारुति सुजुकीज़. फीचर्स वाइज इट ऑफर्स अ लॉट, थिंग्स कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर, एंड चलाने के मामले में गाड़ी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है. ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज. नाउ इट्स ऑल गोइंग टू कम डाउन टू द प्राइस. वंस वी गेट टू नो द प्राइस, हम डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में उसको पिन करने वाले हैं अपनी ओपिनियन के साथ. इन द मीन टाइम, यू टेल अस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मारुति सुजुकी e Vitara? Do you think this could be your next electric car? Thank you so much for watching, and until the next one, goodbye.